Hello, dear students. As we were studying ray optics and we had already discussed lens maker formula in case of lenses. Today we'll be seeing power of a lens, combination of lenses, and refraction through a prism. What is power of a lens? It is defined as the measure of degree of convergence or divergence of a light rays falling on it is called power of a lens. Basically, what does it mean is, suppose here we have one lens and this lens has the power of converging the light, as it is a convex lens, so it is having the power of converging. In this case, suppose the focal length of this lens is over here. So all the rays which are coming parallel to the principal axis will meet at this particular point. Means the ray which was straight, it has been bent by this lens to a certain angle. And this angle is suppose delta, right? H is the height. Suppose H is the height of the ray which is incidented on the lens, and f is the focal length of this lens. If h becomes 1 meter, if h becomes 1 meter, then tan delta, this will be equal to, if this angle is delta, that means this angle is also delta. So it means it will be h upon f. If I'll write h as 1, and here we have the focal length, so this delta is called the power. कहने का मतलब ये कि सिंपल सी बात, इसने क्या किया, इसने एक रे को जो सीधी आ रही थी उसको, इसके पास इतनी ताकत है कि इसने क्या काम किया, एक पर्टिकुलर एंगल पर उस लाइट रे को बेंड करा दिया. दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ लेंस. Here, if we have a concave lens, in this case also, what the ray do is, suppose a light ray is incidented on it and it will diverge from here. Here also, if I am having a light ray, it will diverge to a certain angle. So this is called the power of this concave lens. So to find power, we have a formula that is P is equal to 1 upon F. तो जिसकी जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी एबिलिटी कम होगी, और जिसकी जितनी कम फोकल लेंथ होगी, तो स्मॉलर दी फोकल लेंथ, larger will be its larger will be its power, right? तो सिंपल सी बात ये कि जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम उसकी पावर उतनी ज्यादा, जिसकी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा, क्यों, फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगी तो ये एंगल उतना ज्यादा कम होगा, मतलब उतनी कम उस लाइट को ये क्या कर पाएगा, बेंड कर पाएगा, और जितना कम ये लाइट को बेंड कर पाएगा मतलब उस लेंस की पावर उतनी कम है. सपोज वी हैव अ स्टिक, एक बिल्कुल स्ट्रेट स्टिक है, एक बंदा है वो उस स्टिक को तोड़ लेता है, मतलब उसको बेंड करा लेता है टू अ सर्टेन एंगल. एक बंदा है जो उसको बहुत ही कम बेंड करा पाता है. तो ऑब्वियस सी बात है, पावर जो जिसके पास ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा बेंडिंग करा पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास पावर ज्यादा है. तो जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम होती है उस लेंस की पावर उतनी ज्यादा होगी. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस P is equal to 1 upon F is there. So its unit will be meter inverse. Just remember that the focal length, while using this formula, the focal length must be in meter. It is also called, this 1 meter inverse is also called diopter. This is the unit of power of a lens. So 1 meter inverse is equal to 1 diopter, and diopter is the name of the scientist on which the SI unit of power of a lens is provided. So
To measure the power of any lens directly by device, the device to measure the power of a lens directly, इसको हम बोलते हैं डायोप्टर मीटर। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हमने एक फोकल लेंथ का भी फॉर्मूला पढ़ा था, और फोकल लेंथ का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फोकल लेंथ का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दूसरे तरीके से इसको याद रखना है, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। तो हमें इतनी बात ध्यान रखनी है। So this is all about power. Next is the combination of thin lenses. What do we mean by combination? Why we make combination of lenses? The first reason to make the combination of lens is to magnify an image. What is the we call it as purpose of combination of lens is, number one, to magnify the image. Second is to increase the sharpness, of image. Third is to erect or invert the final image. And the fourth reason is to increase the field of view. Suppose here I am having so many thin lenses, as suppose here I am having lens L1, L2, L3, L4, L5. These are the lenses. This is 1, 2, 3, 4, 5. How the refraction occurs? As I had already told you कि पहले वाले लेंस से जो भी इमेज बनती है, या पहले वाले रिफ्रैक्शन से जो भी इमेज बनती है, वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। मतलब चाहे रिफ्लेक्शन होकर के कोई इमेज बने, पहले मान लीजिए कोई मिरर रखा हुआ है, वहां से कोई भी लाइट अगर रिफ्लेक्ट होकर के किसी लेंस पर फॉल करेगी, तो जो भी मिरर से इमेज बनकर आई है वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम करती है। किसके लिए? दूसरे वाले आपके सब्सटेंस के लिए, चाहे वो लेंस हो या फिर मिरर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पर जो भी मेरा ऑब्जेक्ट रखा है वो u डिस्टेंस पे रखा है, और अगर ये u डिस्टेंस पे रखा है और मुझे पहले वाले का मैग्निफिकेशन लिखना है, तो सपोज इससे जो भी इमेज बनी वो कहीं ना कहीं एक v1 डिस्टेंस पर बनी होगी। हमें यहाँ पर थिकनेस नेग्लिजिबल माननी है। थिकनेस इज नेग्लिजिबल। थिकनेस को आप क्या मानेंगे? यहाँ पर नेग्लिजिबल मानेंगे। थिकनेस इज नेग्लिजिबल। तो पहले वाले से जो भी मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? v1/u। अब दूसरे वाले का अगर मैं मैग्निफिकेशन लिखूंगा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया v1, और इससे जो इमेज बन रही है वो सपोज कहाँ बन रही है? v2 पर। तो देख लो पहले वाले से जो भी रिफ्रैक्शन हुआ उससे इमेज कहाँ बनी थी? हमारी v1 पर। तो वही v1 डिस्टेंस सेकंड वाले के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ध्यान में बात ये रखनी है कि यहाँ पर हमने सारे के सारे लेंसेज को कैसे रखा हुआ है? कंबाइन करके रखा हुआ है, एक दूसरे के साथ चिपका कर रखा हुआ है। अगर यहीं पर मुझे m3 लिखना होगा, सो m3 विल बी, अब m3 मतलब थर्ड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? v2, और यहां पर इमेज डिस्टेंस विल बी v3, यहां पर सपोज v4, यहां पर सपोज v5। तो सिंपल सी बात, यहां पर m4 विल बी इक्वल टू, फाइनली जो हमें मिली वो सपोज v पर मिली, तो m4 विल बी इक्वल टू v4
upon V3. M5 will be equal to V upon V4. If I'll multiply all these, so it will be M1, M2, M3, M4, M5. So it will be V1 upon U, V2 upon V1, V3 upon V2, V4 upon V3, V upon V4. See, each and these many terms are going to cancel out and we'll get it as V by U. So this is the M इक्विवेलेंट. मतलब इन सारे के सारे लेंसेज को हटा करके अगर मुझे एक सिंगल लेंस लगाना होगा तो उसका मैग्निफिकेशन का इक्विवेलेंट जो आएगा, दैट इक्विवेलेंट विल बी V by U. M इक्वी विल बी V by U. मतलब ये सारे के सारे लेंसेज को आप हटा दीजिए और हटाने के बाद कहीं ना कहीं पर कोई एक फाइनल इमेज बन रही होगी. मान लीजिए यहाँ पर कहीं एक फाइनल इमेज बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बी V. मतलब इन सारे के सारे लेंसेज को हटा करके आपने एक सिंगल लेंस अप्लाई कर दिया, तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगी, वही यहाँ पर मैग्निफिकेशन हो जाएगी और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया आपका V by U. सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि पावर कैसे निकालेंगे, ये तो मैग्निफिकेशन आ गया. तो सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे हम कि अगर मुझे इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन निकालनी है तो सारे के सारे जो भी हमारे लेंसेज है उन सबका इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन को आप सीधे सीधे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी कि मेरे पास M इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, M1, M2, M3 एंड सो ऑन. इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको M इक्विवेलेंट मिल जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ अ लेंस की, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की. तो नेक्स्ट इज पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब हम इक्विवेलेंट पावर निकालना चाहते हैं. जैसे कि हम रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, इसका क्या मतलब था कि जितने भी ढेर सारे हमें रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं उन सबको हटा करके अगर मुझे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है तो उसके लिए हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाला करते थे. पावर के केस में भी सेम यही चीज है. आपने देखा होगा जब कभी भी आप अपनी आई टेस्टिंग के लिए जाते हैं और मैनुअल आई टेस्टिंग जब आप कराते हैं तो वो जो पर्सन होता है वो पर्सन आपके सामने ढेर सारे लेंसेज रखते चले जाता है, अलग अलग फोकल लेंथ के. तो वो जब अलग अलग फोकल लेंथ के आपके लेंसेज रखते जाता है, उन सारे के सारे लेंसेज को एक साथ रखने के बाद वो उसकी एक कंबाइंड पावर निकालता है और हमें एक सिंगल लेंस बना करके हमारे फ्रेम में हमें प्लेस करके दे देता है. वही काम हमें यहाँ पर भी करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज मैंने दो लेंसेज ले लिए. एक लेंस है मेरे पास L1 या 1 नाम दे देता हूँ मैं इसको, एक दूसरा लेंस है मेरे पास 2. ये ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्वेक्स ही हो, कॉन्केव भी हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सबके लिए रिजल्ट सेम आएगा. बस ध्यान ये रखना है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो आपको पता है, 10th स्टैंडर्ड में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, पॉजिटिव हुआ करती है. किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए. और कॉन्केव की जब आप बात करेंगे तो कॉन्केव के केस में यही फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव रहा करती है. तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन होगा पहले वाले लेंस से, और पहले वाले लेंस से जो भी रिफ्रैक्शन हुआ वो रिफ्रैक्शन होकर मुझे यहाँ पर एक इमेज मिली V1 डिस्टेंस पर. एज दी लेंसेज आर थिन, तो हमें यहाँ पर ये सिर्फ पढ़ने के लिए हम इनको इतना दूर दूर बना रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे आपके प्याज की एक लेयर होती है उतने पतले ये लेंसेज है. तो यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U and image distance for first lens will be V1. So its focal length is suppose f1 and its focal length is suppose f2. So what I can write, 1 upon f1 is equal to 1 upon v1 minus 1 upon u. यही रिलेशन लिख सकता हूं. दिस इज इक्वेशन 1. दूसरे रिलेशन में अगर हम बात करें तो यहां से जो भी लाइट रे जा रही थी वो इस वाले लेंस की वजह से भी तो बेंड होगी और फाइनली जो हमें इमेज मिलेगी दैट इमेज विल बी एट डिस्टेंस v. So 1 upon f2 will be equal to 1 upon v minus 1 upon v1. ऐसा रिलेशन हमें देखने को मिलेगा. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ऐड करने पर देखो तो इंटरमीडिएट जो इमेज बन रही है वो कैंसिल आउट हो जाएगी. सो 1 upon f1 प्लस 1 upon f2,
दिस विल बी इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फाइनल इमेज आपको v पर मिल रही है और इनिशियल इमेज आपकी u पर है, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम 1/f इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। सो अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मिलेंगे हमें, इन दैट केस अवर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी, आप सारी की सारी फोकल लेंथ को ऐड करते जाइएगा, उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते जाइएगा, तो आपको 1/f इक्विवेलेंट मिल जाए। बस ध्यान ये रखना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, और कॉन्केव लेंस की जो आपकी फोकल लेंथ रहा करती है वो नेगेटिव रहा करती है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो साइन कन्वेंशन आपको अज्यूम करके ही आप पावर निकाल सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अगर मुझे किसी प्रिज्म के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन कराना है तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रिज्म होता क्या है, व्हाट इज प्रिज्म। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रिज्म होता है उसके दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और बाकी सारे के सारे यहां पर आपको रेक्टेंगुलर फेस दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये आपका प्रिज्म हो गया। तो यहां पर जो भी आपका प्रिज्म एंगल है इसको आप हमेशा ट्रायंगुलर साइड से आप प्लेस करेंगे, मतलब जो रिफ्रैक्शन होगा वो इस फेस के थ्रू होगा, किसके थ्रू, रेक्टेंगुलर फेसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है। यहां पर रिफ्रैक्शन अकर्स एट रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक, तो यहाँ पर ये जो एंगल है, जो ट्राइंगल का जो ऊपर वाला जो ये एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज रिफ्रैक्टिंग एज। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। कंसेप्ट वही है रिफ्रैक्शन कराने का, जो चीज आप लोगों ने अभी तक सीखी है। जब कभी भी हम इसका 2D फिगर बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको इस साइड से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे सिर्फ एक ट्रायंगुलर शेप का ही प्रिज्म दिखाई देगा, बाकी तो पीछे जो है वो आपके कैसे फेसेस होंगे, रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। मतलब अगर मुझे प्रिज्म को 2D फिगर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है प्रिज्म विल लुक लाइक एज अ ट्रायंगल व्हेन आई लुक फ्रॉम हियर। अगर मैं इसको यहां से ऑब्जर्व करूंगा तो ये मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। तो इस सेक्शन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक, अब देखते हैं कि इस प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो अगर मुझे प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन देखना है तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, देखिएगा। यहां पर ये मेरा एक प्रिज्म है, ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक प्रिज्म एंगल होगा, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया ए, इस प्रिज्म को मैंने नाम दे दिया ए बी सी। अब देखो यहां से जो भी लाइट रे आएगी वो लाइट रे सीधे स्ट्रेट इसके ऊपर फॉल करेगी, और फॉल करने के बाद ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो आपका मीडियम है वो एयर है, और इसके अंदर जो मीडियम है वो आपका ग्लास का बना हुआ है या किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू मान लिया। यहाँ पर जैसे ही लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो ये इंटरफेस आ गया जो दो मीडियम को डिफर कर रहा है। अगर दो मीडियम को डिफर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहीं पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, वहीं पर हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। सो दिस विल बी द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो ऑब्वियस सी बात है लाइट रे जानी कैसे चाहिए थी, जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी, लेकिन ये जाएगी कैसे, ये बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो ये बेंडिंग हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब ये बेंडिंग हो गई तो ऑब्वियस सी बात है फिर से इसको एक इंटरफेस मिला, और जब इसको फिर से एक इंटरफेस मिला तो यहां पर फिर से आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, यहां पर फिर से आपको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ऐसे ही बनेगा वो नॉर्मल। जैसे ही आपने नॉर्मल बनाया, लाइट रे जानी कैसी चाहिए थी, जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी, लेकिन ये जाएगी कैसे, ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस इज योर नॉर्मल,
इससे अवे की डायरेक्शन में जाएगी। तो ये आपका रे डायग्राम हो गया। दिस विल बी योर रे डायग्राम। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म क्या करता है, आपकी लाइट रे को डिविएट करने का काम करता है, कि जो भी लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी उस लाइट रे को अब ये इस डायरेक्शन में डिविएट कर दिया इसने। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस वाली लाइन को यहां पर ज्वाइन करा दूं कुछ ऐसे, ये मैंने ज्वाइन करा दिया, तो यहीं पर ये जो मुझे एंगल दिखेगा, दिस एंगल इज, this angle is angle of deviation. This is delta, and this is called angle of deviation. ठीक, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपने लाइट रे को इंसिडेंट कराया है तो दिस एंगल विल बी आई। यहां से ये रिफ्रैक्ट हुई है, देखो नॉर्मल के साथ वाला एंगल, इसको हम R1 नाम दे देते हैं। यहां पर फिर से ये लाइट इंसिडेंट हुई है, लेकिन इस एंगल को भी हम नाम क्या देंगे, R2 दे देंगे। और यहां पर ये बाहर निकली है, मतलब इमर्ज हुई है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतनी बात समझ में आई। अब हम रिलेशंस फाइंड करते हैं जरा, कि इन सब के बीच में रिलेशंस क्या होगा, ये जो भी हमें एंगल्स दिखाई दे रहे हैं इन एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हमने क्या काम किया, हमने इसको नाम दे दिया। हमने क्या नाम दे दिया इसको, सपोज हमने नाम दे दिया, ये यहां से एक रे आ रही है P Q R, और यहां पर ये हो गया हमारा S, और इसको नाम दे दिया हमने, इस पॉइंट को M, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया N। ठीक, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो देखो सबसे पहली चीज ये कि यहाँ पर आपको रिलेशन कैसे बनाने हैं। हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर एक के बीच में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आई डेल्टा ई इन सब में क्या रिलेशन होगा, ए इन सब में क्या रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या काम किया, हमने सबसे पहले एक ले लिया ट्राइंगल। आप कुछ भी ले सकते हैं, पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले इन ट्राइंगल QNR, और जैसे ही मैंने ये QNR ट्राइंगल लिया तो R1 प्लस R2, ये तो दो एंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे, और एक एंगल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एंगल मुझे दिखाई दे रहा है एंगल QNR, and this angle, the sum of the angles in a triangle is 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अब हम अगर आगे देखें यहाँ पर, तो अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया से MQR, तो अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल R1 है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, I माइनस R1, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी E माइनस R2, ऐसे ही दिखेगा। तो अगर मैं यहां पर ट्राइंगल अज्यूम कर लेता हूं, ट्राइंगल QMR, ट्राइंगल QMR, तो इस ट्राइंगल में देखो क्या रिलेशन मिलेगा मुझे, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 प्लस एंगल QMR, and this will be equal to 180 डिग्री। ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा हमें। एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, और वो रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर ये जो डेल्टा है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के लिए, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर मुझे डेल्टा का देखो रिलेशन क्या मिल गया बेटा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, ऐसा ही रिलेशन देखने को मिलेगा। तो डेल्टा विल बी I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, दिस विल बी द रिलेशन। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें डेल्टा मिल गया। अब एक काम और करते हैं, क्या काम करने की कोशिश करें, अगर मैं इन क्वाड्रिलेटरल, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई, अगर मैं यहीं पर इन क्वाड्रिलेटरल
या यहां से लिखना शुरू करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल मान लूं QARN, QARN, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां पर देखो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल AQN प्लस एंगल QNR, QNR प्लस एंगल NRA, NRA, दिस मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री, ऐसा ही रिलेशन मिलना चाहिए। AQN, ये देखो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है बेटा, ये 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 90 है, तो यानी कि A तो A ही रहा, प्लस AQN हमारा कितना हो गया 90, प्लस एंगल QNR हमें अभी पता नहीं है, QNR, ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो गया 90 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो A प्लस एंगल QNR, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल QNR की जो वैल्यू मिली मुझे, वो मिल गई मुझे 180 माइनस ऑफ A। जब मुझे QNR की वैल्यू मिल गई, तो अब जरा फर्स्ट वाले रिलेशन में मैं इस वैल्यू को अगर मैं प्लेस करूं, यूजिंग दिस रिलेशन, यूजिंग इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 4 इन 1, तो देखो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे यहां से, दिस विल बी R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 माइनस A इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, R1 प्लस R2 मेरे को किसके बराबर मिला, A के बराबर मिलेगा। दिस इज रिलेशन 5। ठीक, तो अगर ये R1 प्लस R2 A के बराबर है, तो अब देखो नाउ यूजिंग, अगर मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूं, नाउ यूजिंग इक्वेशन 5 इन 3, यूज करो, तो R1 प्लस R2 की जगह पर A लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा विल बी इक्वल टू I प्लस E माइनस A देखने को मिलेगा आपको। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 6, दिस इज योर 6th रिलेशन। तो इतनी बातें हमें यहां पर समझ में आई। अब हमें क्या देखना है, अब हमें मिनिमम डिविएशन के लिए कंडीशन निकालनी है। किसकी कंडीशन, मिनिमम डिविएशन की। तो मिनिमम डिविएशन की कंडीशन हम लोग देखो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर मैं यहां पर इक्वेशन 3 को यूज करूं, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ऐसा ही रिलेशन है। तो इसमें इस चीज रिलेशन को देखकर तो मिनिमम डिविएशन की कोई कंडीशन समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर अप्लाई करें यहाँ पर, तो डेल्टा को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो रूट आई का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं रूट ई का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट R1 का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट R2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आई माइनस रूट ई का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 रूट अंडर आई ई, ऐसे ही रिलेशन देखने को मिलेगा, माइनस यहां पर भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, रूट R1 माइनस रूट R2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 रूट R1 R2, ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर अब मुझे मिनिमम डिविएशन समझ में आ रहा है कि भैया ये वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती ना, ये वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन इन स्क्वायर्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू मुझे जीरो मिल सकती है। यानी कि फॉर मिनिमम डिविएशन, फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम, व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर इज कि भैया आई जो है वो ई के बराबर हो जाए, आई मस्ट बी इक्वल टू ई, और R1 जो है वो R2 के बराबर हो जाए, तो हमें मिनिमम डिविएशन मिलेगा, वी गेट डेल्टा मिनिमम।
एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ में आई कि अगर R1 और R2 इक्वल हो गए तो सिंपल सी बात, ये जो QR है ये BC के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात, इफ R1 is equal to R2 is there, then हम सीधे सीधे बोल सकते हैं देन QR विल बी इक्वल टू BC। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई कंडीशन दे रखी हो कि जो भी आपकी लाइट प्रिज्म के अंदर ट्रेवल कर रही है वो BC के पैरेलल है, तो ये किसकी कंडीशन है? दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। ठीक, अब I जब मुझे E के बराबर मिल गया और R1 इज इक्वल टू R2 मिल गया, तो देखो मैं क्या लिख पाऊंगा, डेल्टा मिनिमम। अब मैं कैसे लिख पाऊंगा, I प्लस E माइनस ऑफ A, यही रिलेशन था मेरे पास। तो डेल्टा M में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2I माइनस ऑफ A। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, डेल्टा M प्लस A डिवाइड बाई 2, ये मुझे I मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ठीक, I की वैल्यू मिल गई मुझे। और R1 प्लस R2 जो मुझे रिलेशन मिला था वो किसके बराबर मिला था, A के बराबर मिला था। यानी कि 2R इज इक्वल टू A लिख सकता हूं मैं, कि मैंने क्या बोल दिया, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R मान लिया मैंने। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, A बाई 2। तो ये मुझे R मिल गया। नाउ बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, किसी भी फेस पर अप्लाई कर दो स्नेल्स लॉ, चाहे आप AB वाले फेस पर अप्लाई करो या AC वाले फेस पर अप्लाई करो। अगर मैं AB वाले फेस पर अप्लाई करूंगा तो सिंपल सी बात, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू मिलेगा मुझे। तो यहां पर म्यू का जो एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 डिवाइड बाई साइन A बाई 2। और इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी रिलेशन को हम प्रिज्म फॉर्मूला भी बोलते हैं। और इससे रिलेटेड यू विल फाइंड एक्सपेरिमेंट इन योर 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स लैब। क्लियर हो गई बेटा बात? अब यहीं पर कई बार हमसे डिविएशन पूछता है प्रिज्म जो कि बहुत ही स्मॉल एंगल्स के होते हैं। तो अगर हम यहीं पर बात करें अगले केस की, तो ये सारे के सारे रिलेशंस आप ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी रिलेशन से रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और ये डेरिवेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है कि प्रिज्म फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करेंगे। तो प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ दिस रे डायग्राम एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड दीज इक्वेशन। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले इसी को डील करें या इसी को डील करें, आप पहले क्वाड्रिलेटरल डील कर सकते हैं फिर इसको डील कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप पहले डील कर सकते हैं। आपको इक्वेशन बना करके फाइनल कंक्लूजन आपको यहाँ पर पहुंचना है। और एक बार जब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे उसके बाद फिर आपको मिनिमम डिविएशन की कंडीशन निकालनी है। तो मिनिमम डिविएशन की कंडीशन से मुझे ये पता चला कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है मतलब मिनिमम डिविएशन है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो R1 और R2 को भी बराबर होना पड़ेगा। इससे एक और रिलेशन मुझे समझ में आया कि जो भी मेरा QR है वो मेरा BC के पैरेलल होना चाहिए, इक्वल नहीं सॉरी, पैरेलल होना चाहिए, सॉरी पैरेलल होना चाहिए यहाँ पे, पैरेलल टू BC। तो ये भी हमारी कंडीशन है मिनिमम डिविएशन की। अगर यही डिविएशन मुझे स्मॉल एंगल्स में देखना है, तो मान लीजिए एक बहुत ही स्मॉल एंगल का एक प्रिज्म है मेरे पास, स्मॉल एंगल का एक प्रिज्म है, और जो ये स्मॉल एंगल का प्रिज्म है तो ये एंगल बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा तो पहले वाला वही सेम रे डायग्राम बन रहा होगा। यहाँ पर ये रे जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी, बेंड हो जाएगी, बेंड होकर यहाँ पर ये नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा तो ये लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाले इंटरफेस की बात करूं तो पहले वाले इंटरफेस पे यहाँ पर जो मुझे एंगल मिल रहा है वो I मिल रहा है। यहाँ पर सपोज ये एंगल जो है वो R मिल रहा है, यहाँ पर ये एंगल जो है वो सपोज R डैश मिल रहा है, और यहाँ पर ये सपोज I डैश मिल रहा है।
तो अगर मैं पहले वाले इंटरफेस यानी कि ए बी वाले इंटरफेस पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं, तो ए बी वाले फेस पर स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई कर दूंगा, साइन आई अपॉन साइन आर, दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू, एज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू मिलेगा, यानी कि आई की वैल्यू मुझे म्यू आर के बराबर मिल जाएगी। आपको पता है जब एंगल स्मॉल होते हैं तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू टेन थीटा, और यही आपका थीटा के बराबर होता है। तो मुझे आई पता चल गया। एक बार आई मिल गया तो अब जरा एसी इंटरफेस पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश, दिस विल बी इक्वल टू जिस मीडियम में जाते हैं अपॉन जिस मीडियम से आते हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी आर डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू देखने को मिलेगा। सो म्यू विल बी इक्वल टू सॉरी आर डैश विल बी इक्वल टू या आई डैश विल बी इक्वल टू, मुझे रिलेशन जो देखने को मिलेगा वो म्यू आर डैश देखने को मिलेगा। ये दो रिलेशन मिल गए मुझे। अब अगर मुझे ये दो रिलेशन मिल गए, मुझे कंडीशन निकालनी है क्या, मुझे डिविएशन निकालना है बाय द प्रिज्म। तो डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ऑफ ए। यहाँ पर हमने ई को क्या माना है, ई को हमने डैश माना है माइनस ऑफ ए, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू, हम सीधे सीधे इसको क्या लिख पाएंगे, म्यू इंटू आर प्लस म्यू इंटू आर डैश माइनस ऑफ ए। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर प्लस आर डैश, और अगर ये आर प्लस आर डैश है मतलब ये आर वन आर टू की तरह ट्रीट हो रहा है, तो यानी कि म्यू इंटू में इसको ए लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए, यानी कि डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। अगर एंगल बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उस केस में आपको डिविएशन कुछ ये मिलेगा। आपको पता है कि प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन भी होता है। डिस्पर्जन जो आपका हो रहा होता है वो क्यों हो रहा होता है, उसके पीछे रीजन है बेटा कॉचीज फॉर्मूला। सो व्हाई डिस्पर्जन अकर्स, व्हाई डिस्पर्जन अकर्स, तो इसमें डिस्पर्जन का रीजन जो है वो ये है कि हर एक जो भी कलर है, ईच कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, और अगर हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हर एक की डिस्पर्जन, जो भी आपका डिस्पर्जन अगर हर एक की वेवलेंथ अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो होता है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। ड्यू टू दिस द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स of the medium will be different। तो हर एक के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अलग अलग मिलेगा तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था काउची, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया, और उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपका म्यू है, दिस म्यू इज बेसिकली इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसा आपके पास एक रिलेशन है, लेमडा टू द पावर 4, ये आपके पास एक रिलेशन है। तो यहाँ पर मुझे सीधे सीधे समझ में आ रहा है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका म्यू मुझे क्या मिलेगा, कम, और जिसकी वेवलेंथ कम उसका म्यू क्या होगा, ज़्यादा। तो लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उसके लिए म्यू डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी लाइट रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो म्यू उसका डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इसका म्यू डिक्रीज हो जाएगा तो वो बहुत कम बेंडिंग कराएगा। इसलिए जब कभी भी डिस्पर्जन होता है तो ये लाइट रे जानी तो ऐसी चाहिए थी, ये बहुत कम बेंड होगी, और जब ये बहुत कम बेंड होगी तो यहाँ पर आपको मिलेगा रेड कलर। रेड के बाद आपको जो कलर देखने को मिलता है वो ऑरेंज देखने को मिलता है, तो उसकी बेंडिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये आपको मिल जाएगा ऑरेंज कलर। और ज़्यादा बेंडिंग होगी तो यहाँ पर आपको विबग्योर देखने को मिलता है ऑरेंज, ऑरेंज के बाद आपको सीधे सीधे येलो दिखाई देता है, येलो के बाद आपको ग्रीन का कलर दिखाई देगा, ग्रीन के बाद आपको अगला जो डिविएशन दिखाई देगा वो ज़्यादा डिविएशन
वो आपको ब्लू का दिखाई देगा, ब्लू के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद आपको वॉयलेट कलर देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये विबग्योर जो आपको दिखाई देता है वो उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो भी आपके कलर्स हैं उन सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, और वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम का डिफरेंट होता है अलग अलग कलर की लाइट के लिए। अगर व्हाइट लाइट है तो वही व्हाइट लाइट में तो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, हर एक कलर की लाइट होती है। तो जो रेड कलर वाली जो लाइट होगी वो कम बैंड होगी, ऑरेंज वाली उससे ज्यादा होगी, येलो वाली उससे ज्यादा होगी, ग्रीन वाली उससे भी ज्यादा होगी, वॉयलेट वाली सबसे ज्यादा डिविएट होगी। तो ये चीज आपको दिखाई देता है। तो यही जो फिनोमिना है कि जो आपने व्हाइट कलर की लाइट फॉल कराई थी, यही व्हाइट कलर की लाइट आपकी सेवरल डिफरेंट कलर्स में जो स्प्लिट हो गई है, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिज्म। और भी एक कंसेप्ट रह जाता है अपना, दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म से वाइट कलर की जब भी आप लाइट फॉल कराते हैं तो ये अलग अलग कलर्स में आपकी लाइट डिविएट होती है। तो जैसे मान लीजिए ये लाइट रे जो भी आपने फॉल कराई है, जानी तो स्ट्रेट चाहिए थी, बेंडिंग हो गई, और ये भी बेंडिंग हो गई, तो बेंडिंग होकर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर वेबग्योर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये सपोज आपके वॉयलेट कलर की बेंडिंग आपको देखने को मिली, दिस इज डेल्टा वॉयलेट, और ये आपको रेड कलर की बेंडिंग देखने को मिली है, यानी कि डेल्टा रेड। तो अगर यहाँ पर मुझे क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है, तो एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब है एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर डिस्पर्जन, इसका क्या मतलब है? इट इज डिफाइंड एज द एंगुलर सेपरेशन, angular separation between the two extreme colors, between the, या two colors बोल दो आप सीधे सीधे, two colors in the spectrum, in the spectrum is dispersion। तो अगर मुझे एक्सट्रीम कलर मतलब ये वॉयलेट और रेड की बात करनी है, तो जो भी मेरे पास एंगुलर डिस्पर्जन आएगा, एंगुलर डिस्पर्जन इस केस में जो मुझे देखने को मिलेगा, वो मुझे देखने को मिलेगा भैया डेल्टा वॉयलेट में से आप डेल्टा रेड को माइनस कर दीजिए। अगर मान लो ये ग्रीन और ऑरेंज की, या फिर सपोज इंडिगो और ऑरेंज की बात करेगा, तो उसके लिए आपको इंडिगो में से आपको ऑरेंज को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपको एंगुलर डिस्पर्जन दे देगा। तो एंगुलर डिस्पर्जन मतलब कि कौन सी लाइट कितनी ज्यादा बेंड हुई, उनके बीच में कितना सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर सेपरेशन। इसी में आपको एक और टर्म देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। और ये जो डिस्पर्सिव पावर होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म टू कॉज डिस्पर्जन। प्रिज्म की कितनी एबिलिटी है डिस्पर्जन को कॉज कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डिविएशन। मीन डिविएशन मतलब जब तक हमने कलर्स की बात नहीं करी थी, तो वहां पर हमें मीन डिविएशन कितना मिल रहा था स्मॉल प्रिज्म के लिए? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। और एंगुलर डिस्पर्जन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यही हमारे पास फॉर्मूला है। कोई भी अगर दूसरे कलर्स होंगे तो उनके लिए यही फॉर्मूला है, इट विल बी म्यू माइनस वन इंटू ए, ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो हमें रिलेशन देखने को मिला है, इस डेल्टा वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अब इसके लिए म्यू तो अलग होगा, यानी कि डेल्टा म्यू वी माइनस वन इंटू ए, और ये चीज मुझे क्या देखने को मिलेगी? म्यू आर माइनस वन इंटू ए। इसी वाले फॉर्मूले में अब हम लोग अलग अलग डिविएशन निकाल रहे हैं, वॉयलेट का ये डिविएशन, रेड का ये, डिवाइड बाई म्यू माइनस वन इंटू ए। तो देखो ए तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, वन भी हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा क्या मिल जाएगा आपको? म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन।
So this will be the formula for dispersive power. So I hope ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. मीन डिविएशन, अगर मान लीजिए कोई दो कलर्स दिए हुए हैं, उसमें अगर आपको मीन डिविएशन निकालना है या फिर मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कहीं पर भी आपको टर्म दिखाई दे मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो घबराने की जरूरत नहीं है. मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा कि म्यू आर और म्यू वॉयलेट, यही दो एक्सट्रीम कलर्स हैं. इसका आप एवरेज ले लीजिए, दैट विल गिव यू द मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा आपको. ऐसे ही अगर आपको मीन डिविएशन निकालना है, दोनों कलर का आपको डिविएशन दे दिया गया है और आपको मीन डिविएशन फाइंड करना है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको उन दोनों एक्सट्रीम कलर्स का क्या ले लेना है, आपको एवरेज लेना है, यानी कि डेल्टा आर प्लस डेल्टा वी अपॉन 2, ये आपका मीन डिविएशन हो जाएगा. तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है और इन्हीं से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, वो न्यूमेरिकल्स को आप डील कीजिएगा. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. पढ़ाई करते रहिए.